this sum. Already done it once. The video should be on 28th problem, draw fast. The books of Zaver, Yasin and Zubair. The problem is simple one. And it has got two different points, two different things. We'll discuss about it. Let's start. Step number one, start with the emptying of balance sheet. Start with the capital accounts. Now only capital account, no current account. So buy balance BD. So T1010. Okay. The capital. Now you don't have any reserves or PNL account, but you have leasehold redemption fund and life policy fund. Okay. Now remember not to distribute. Okay. Leasehold redemption fund, life policy fund देख के confuse मत होना. उसको partners में distribute मत कर देना. How to tackle them, I'll tell you. Go to bank, write down the opening balance. बैंक में लिख दो opening balance 1500. And go to the realization part and transfer the remaining assets. Start with goodwill to sundry assets. Goodwill is 20,000. Leasehold building is 12,500. Machinery is 30,520. Stock is 7550. Investments are 6330. Joint life policy. Okay, important item. Joint life policy 12,000. We have to write it like any other asset. Debtors this one is similar.
Debtors, you will take it at gross value. Is 5,800. RDD will be showing separately. That is 500. And similar to RDD, we have two other items in this sum, that is joint life policy fund, which is to support the joint life policy, 12,000. And we have leasehold redemption fund. Just copy down, I'll tell you what is the meaning. Which is 6,000. All three items are similar. Okay. Then we write down the. सर मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रही हूँ तो आप मुझे अंदर Yeah. Other liabilities भी लिख दो, by sundry liabilities. You have bank loan. Which is 11,500. And you have creditors, 16,200. 27,700. I think we have transferred all the items. Now only two items were different in the problem. See, what were those? ये इसमें से एक तो हमने already किया हुआ है. Debtors, we know that we write them at value, and RDD we write it separately, right? RDD क्या होता है? आपको बैड डेट से बचाने के लिए, बैड डेट्स को कम करने के लिए आपने ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा है, एडवांस लॉस दिखा के रिजर्व क्रिएट करके रखा है. तो कुछ भी बैड डेट्स होगा तो वो RDD एडजस्ट करके अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से अपना पार्टनर्स कैपिटल में. यू विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर योर RDD. बराबर है? This we know, debtors and RDD. RDD, we transfer it to realization, but we never pay it off. On the same lines, we have these two other assets and their reserves. Can you all see that? We have leasehold building 12,500 और leasehold building के सामने आपको मिलेगा leasehold redemption fund 6,000. Similarly, joint life policy मिलेगी और उसी के सामने मिलेगा joint life policy fund. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. इसका मतलब क्या होता है? एकदम ध्यान से देखना. See properly. Now, जैसे डेटर्स थे तो डेटर्स वेर अवर एसेट. ठीक है? तो डेटर्स हमारा जो एसेट है वो अगर कम हो जाता है ड्यू टू बैड डेट्स, और अगर RDD नहीं होता तो पूरा का पूरा बैड डेट्स जाता है P&L में एज अ लॉस. तो RDD क्या करता है? RDD उस बैड डेट्स को कम करने में हेल्प करता है अपना ही प्रॉफिट हमने ही साइड पे रखा हुआ है. तो RDD reduces the loss of bad debts, right? तो अभी यहाँ पे RDD 500 है और आपका बैड डेट्स 1000 हो गया, तो पूरा 1000 P&L में नहीं जाएगा, तो वो 500 रुपया अब्सॉर्ब हो जाएगा RDD. That's why you subtract ORDD in the formula, remember? And बाकी का 500 goes to your P&L as your loss. Similarly, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको दिखाई दे रही है 12,000 रुपीज,
व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी? जैसे आप घर पे अपना पर्सनल इंश्योरेंस निकलवाते हो, लाइफ इंश्योरेंस, ओके? तो जैसे आप पर्सनल इंश्योरेंस निकलवाते हो घर पे, वैसे ही बिजनेस भी इंश्योरेंस निकलवा सकता है। बिजनेस मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, तीनों पार्टनर का मिला के इंश्योरेंस निकलवाता है, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस ही है, आपका पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस अलग है घर का, और बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में आप अलग से लाइफ इंश्योरेंस निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नाउ व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों की जॉइंट लाइफ पे होता है। अभी यहाँ पे ज़ैवियर, यासिन और जुबैर है, तीनों का जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ये। तो ये एसेट में 12,000 क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है उसका प्रीमियम। जो भी आपने प्रीमियम पे किया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपीज। इसको सरेंडर वैल्यू भी कहा जाता है। ओके, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन योर प्रीमियम पेड एंड सरेंडर वैल्यू। बोलने का मतलब, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखी होगी तो कैसे काम करती है, इफ यू नो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, आपको हर साल प्रीमियम पे करना पड़ता है। समझो इनका हर साल का प्रीमियम 4,000 रुपया था, तो पहले साल भी 4,000 भरा होगा, सेकेंड ईयर 4,000 भरा होगा, थर्ड ईयर 4,000 भरा होगा, फोर्थ ईयर 4,000 भरा होगा। तो ऐसे चार 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 करके इन्होंने अभी तक 16,000 रुपया प्रीमियम भर लिया है पार्टनर्स। ऑब्वियसली कोई मरा नहीं है, इसके लिए इनको क्लेम नहीं मिला है, बराबर है? कोई मर जाएगा तो दे विल गेट द क्लेम, सिंपल एज दैट। ओके, कवर वैल्यू मिलती है। ओके, क्लेम मतलब कवर वैल्यू। कवर वैल्यू कितनी अपने को पता नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं। अभी एकदम ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। 4,000 ईच, 4,000 4,000 करके 16,000 रुपया प्रीमियम भरा है। ओके, ये 16,000 का प्रीमियम विल बी शोन एज योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बट ये 16 का यहाँ पे 12 कैसे हुआ? ये 16 तुमने प्रीमियम भरा था, तो पार्टनर क्या सोचेंगे, उन्होंने 16,000 का एक एसेट अक्वायर किया है, हर साल 4,000 का एसेट अक्वायर कर रहे हैं। तो वैसे 16,000 आपका प्रीमियम के साथ पॉलिसी वैल्यू होना चाहिए एसेट के फॉर्म। बट यहाँ पे तो दिख रहा है 12, और वो 12 ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पॉलिसी में एक और वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। योर पॉलिसी हैज गॉट वन मोर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? आपने सुना होगा ये, अगर आप एक साल प्रीमियम भर के पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर देते हो तो आपको 0 रुपीज मिलते हैं। मतलब कुछ कंपनी आपको वापस नहीं देता, प्रीमियम गया वो गया। 2 साल प्रीमियम भर के डिसकंटिन्यू करते हो तो शायद कहीं 1,000 रुपये आपको मिल जाए। मतलब आपने भरे 8,000 और आप डिसकंटिन्यू कर देते हो पॉलिसी, तो आपको 1,000 रुपया मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ सम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दैट कंपनी। आपका चार्जेस वगैरह सब काट कूट के 1,000 रुपया दे देगा। 8,000 रुपए में से 7,000 रुपया गया पानी, अगर आप पॉलिसी बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो। सिमिलरली अगर आपने 3 साल का प्रीमियम भर लिया और फिर आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हो तो शायद आपको 5,000 रुपए मिल जाए, शायद आपको 5,000 रुपए मिल जाए। आपने भरे 12,000, लेकिन अगर आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो यू विल गेट बैक ओनली 5,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड एज द सरेंडर वैल्यू। इसको कहा जाता है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू इज एज गुड एज सेल वैल्यू ऑफ दैट एसेट। आप ऐसा सोचो, जो भी प्रीमियम आपने भरा है पॉलिसी पे वो आपका एसेट है। आपने हर साल 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000 रुपया प्रीमियम भरा है, तो यू आर थिंकिंग लाइक एज एन एसेट कि 4 इयर्स का 4,000 करके आपने 4,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो आपका 16,000 का फर्नीचर जैसे बन जाता है, वैसे यहाँ पे 16,000 का जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज योर एसेट। लेकिन बुक्स में आप उसका वैल्यू 16 नहीं दिखाओगे, उसको आप डेप्रीशिएट करके दिखाओगे। हाउ यू विल डेप्रीशिएट? और डेप्रीशिएट क्यों करेंगे? डेप्रीशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी सरेंडर वैल्यू रहती है। व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू? आई जस्ट नाउ टोल्ड यू।
आप अगर पहले साल में वो सरेंडर कर देते हो पॉलिसी, डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो आपको कंपनी से 0 रुपीज मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। 2 साल के बाद अगर आप डिसकंटिन्यू, सम कंपनी 2 साल तक भी 0 ही रखती है, 2-3 साल तक 0 रखती है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेकेंड ईयर में अगर आपने डिसकंटिन्यू किया तो आपने भरा है 8,000, लेकिन आपको मिलेगा वापस 1,000 रुपया। दैट इज द सेल वैल्यू, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। माइंडेड कोई मरा नहीं है, मर जाएगा कोई भी मरा, जावियर, यासिन, जुबैर, कोई भी मर गया, आपको क्लेम वैल्यू मिल जाएगी पूरी की पूरी। ₹1,00,000 क्लेम है, ₹1,00,000 मिल जाएगा। ₹5,00,000 क्लेम वैल्यू, ₹5,00,000 मिल जाएगा, कवर वैल्यू पूरी मिल जाएगी। बट अगर किसी की डेथ नहीं होती है, अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो दिस इज द सेल वैल्यू यू विल गेट। अब ये कहां से पता चलेगा? यू हैव टू गो एंड आस्क द कंपनी ईयर एंड पे आपकी सेल वैल्यू कितनी है, सरेंडर वैल्यू कितनी है। तो पहले साल सरेंडर करोगे 0 मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में सरेंडर करोगे 1,000 मिलेंगे, थर्ड ईयर के एंड में सरेंडर करोगे तो आपको 5,000 मिलेंगे। और अगर 4 साल के एंड में आपने 4 साल का प्रीमियम भर के सरेंडर किया, तो अप्रोक्स आपको समझो 12,000 मिलेंगे, ऐसा आपको पता है, कंपनी से डेटा मिला है। तो ये 12,000 पे ही आप अपनी पॉलिसी को दिखाओगे। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको जो एसेट साइड दिख रही है, वो 12,000 दिखेगी, ना कि 16,000। आप उसको 4,000 से डेप्रिशिएट करके दिखाओ। You will depreciate that policy by 4,000, show that loss in advance। अपना कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट है, अपने को पता है अगर एसेट बेच के 12,000 मिलने वाला है, तो अपने को पहले ही 4,000 रुपया राइट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा एज अवर एक्सपेंस। तो दिस इज हाउ यू शो योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द बैलेंस शीट। समझो 5वां साल है, ये मैंने 4th ईयर का एग्जाम्पल लिया। समझो 5वां साल है, तो आपने और 4,000 रुपया प्रीमियम भरा होगा। एक्चुअली आपने 20,000 का प्रीमियम भरा है, लेकिन आप अगेन उसको कंपेयर करोगे सरेंडर वैल्यू के साथ, जो समझो निकली 17,000। तो आप 20,000 नहीं दिखाओगे पॉलिसी में, आप 17,000 दिखाओगे। 3,000 से ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अगर इस साल बाय चांस कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या हमें पॉलिसी डिसकंटिन्यू करनी पड़े, तो वी विल नॉट गेट 20,000, वी विल गेट ओनली 17,000। आर यू गेटिंग दैट? So whenever you take out a joint life policy in the business in the names of partners and you show it like an asset, आप उसको asset के जैसे दिखा रहे हो, हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम करके asset के जैसा दिखा रहे हो। asset के जैसा दिखाने का मतलब जो भी प्रीमियम किया वो आपका asset बना के दिखा रहे हो। जैसे फर्नीचर खरीद रहे हो वैसे पॉलिसी खरीद रहे हो, हर साल थोड़ी थोड़ी थोड़ी। इट इज लाइक योर एसेट। फिर जो क्लेम मिलेगा या सरेंडर वैल्यू मिलेगी, दैट इज द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट। सिंपल एज दैट। तो आप उसको एसेट के जैसा दिखा रहे हो, तो उसको आप हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करोगे एंड ब्रिंग इट डाउन टू सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू पे दिखा देने का, ईयर एंड पे यू शो इट एज सरेंडर वैल्यू। व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? जब आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू करोगे तो सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी कंपनी। सो ये जो 12,000 रुपीज आपको दिख रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, दिस इज कॉल्ड एज द सरेंडर वैल्यू। मतलब तभी डिसकंटिन्यू करोगे पॉलिसी तो यू विल गेट 12,000 अप्रोक्सीमेटली। कंपनी से ये डेटा मिला है आपको। एक्चुअली जब डिसोल्यूशन होता है और आप सरेंडर करते हो, तो शायद ज्यादा मिले, शायद कम मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये तो आपको डेटा मिला था 2-3 महीने पहले कंपनी से, तो आपने उसके हिसाब से 12,000 रुपया सरेंडर वैल्यू रखा है। आपने सोचा है कि अभी सरेंडर करेंगे तो 12 मिलेगा। फिर 2-3 महीने बाद डिसोल्यूशन हो गया, बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस बंद होने के वक्त जरूरी नहीं है कि 12 ही मिले, शायद 13 मिले, शायद 11 मिले, शायद 10 मिले, डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्चुएशन इन सम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट, या कंपनी का प्रॉफिट्स लॉसेस कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से कंपनी चेंज कर सकती है सरेंडर वैल्यू। तो ये एक्चुअली आपको जो मिलेगा सरेंडर वैल्यू, ये तो आपको उसी डेट पे पता चलेगा जिस दिन आप सरेंडर करेंगे। बराबर? तो ये जो 12,000 है, ये मे बी 2-3 महीने पहले या 1 महीने पहले मेरे को कंपनी से डेटा मिला था। फिलहाल ये सरेंडर वैल्यू चल रही है, तो मैंने सरेंडर वैल्यू दिखा दी है 12,000। एक्चुअली जब आप बेचने जाओ, जरूरी नहीं आपको 12 ही मिले, मे बी 11, मे बी 13,000, बट 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपने 12,000 पे रखा हुआ है ऑलरेडी सरेंडर वैल्यू। ओके, सो दैट वाज योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का फंडा। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली कौन निकलता है? हु टेक्स आउट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी? तो द बिजनेस। Joint life policy is taken by the business. For whom? For all the three partners together.
सबकी लाइफ की पॉलिसी साथ में क्यों निकलवाते हो? भैया अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर कोई रिटायर हो जाए, तो आपको पैसे चाहिए ना उसके एग्जीक्यूटर को देने के लिए या रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए। तो वो पैसे एक लमसम में लाने इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, सॉरी, तो आपको लमसम में पैसा मिल जाएगा, तो आपका वो टेंशन निकल जाएगा। इस रीजन से आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालते हो। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप कैसे दिखाते हो? यू शो इट लाइक योर एसेट इन द बैलेंस शीट, बट द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट एसेट विल बी शोन एट सरेंडर वैल्यू। मतलब हर साल आपने जो प्रीमियम पे किया उसको पहले एसेट में दिखाओगे, फिर राइट ऑफ करके उसको सरेंडर वैल्यू पे लेके आओगे। सरेंडर वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे नहीं दिखा सकते हम पॉलिसी, रिमेंबर। सर सर जो इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं वो भी ऐसे दिखाना पड़ेगा कि इसका कुछ अलग रहेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी का ही बात चालू है बेटा। इंश्योरेंस पॉलिसी 12,000 वही एसेट में दिख रहा है तुम्हारा। ये क्लेम वैल्यू नहीं है। ये आपने जो प्रीमियम भरा है ना, तो आपने सोचो 4 साल 3,000 का फर्नीचर खरीदा, तो आपका फर्नीचर कितना हो गया? 12,000। वैसे ही आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू अभी दिख रहा है 12,000। अभी कोई मर गया तो आपको 1,00,000 रुपया क्लेम मिल जाएगा। तो 1,00,000 रुपीज इज द सेल वैल्यू ऑफ दैट एसेट। जैसे फर्नीचर 12,000 का 1,00,000 में बेचा, यू विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 88,000। सेम वे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 12,000 की बेची और कोई मर गया, क्लेम मिला, तो 1,00,000 रुपया इज द सेल वैल्यू ऑफ दैट पॉलिसी। सिंपल एज दैट। योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिट्टो सिमिलर टू योर एसेट। जैसे आप फर्नीचर ट्रीट करते हो, जैसे आप मशीन ट्रीट करते हो, जैसे आप बिल्डिंग को ट्रीट करते हो, वैसे आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीट करते हो। ठीक है? तो अभी एक ही सेकंड। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी ट्रीटेड एज योर एसेट जस्ट लाइक योर मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। ओके, लेट मी कंप्लीट। तो अभी 12,000 का आपका एसेट दिख रहा है, उसकी सेल वैल्यू है, अगर क्लेम मिला तो 1,00,000। लेकिन यहां पे किसी की डेथ नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हो रही है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हो। यहाँ पे आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हो क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है। ऑब्वियसली आपको बेचना पड़ेगा, तो बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो यू हैव टू सरेंडर द पॉलिसी। तो इफ यू चेक इन द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी? If you check in the problem, they have given the life policy surrendered for 10,000 rupees. Very first line they have given. So that is nothing but the sale value. Life policy surrendered for 10,000 मतलब सेल। मैंने आपको अभी अभी बोला कि जरूरी नहीं आपको 12,000 मिले। आपने सोचा था 2 दिन पहले 12,000 रुपया मिलेगा, लेकिन अब आप सरेंडर कर रहे हो डिसॉल्यूशन के वक्त, तो आपको हाथ में आ रहा है 10,000, तो 2,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस से बचने के लिए, माइंड यू, इस लॉस को कम करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 12,000। कैन यू सी दैट? तो जस्ट लाइक डेटर्स पे वी क्रिएट आरडीडी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लॉस ऑफ बैड डेट्स, वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे कुछ भी लॉस होने वाला है, उसके लिए हम लोग एडवांस में एक फंड क्रिएट करके रखते हैं। उसको कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। उसका नेचर डिट्टो सिमिलर है आरडीडी के जैसा। वो हमारा ही प्रॉफिट है, हमने ही साइड पे रखा है। तो भैया इतना ज्यादा क्यों रखा है? 12,000। लॉस तो 19-20 होगा, अपने को मालूम है। तो 12,000 रुपया क्यों रखा है? तो भैया 12,000 इसके लिए रखा है कि लॉस हुआ तो वो भी एडजस्ट हो जाए, और अगली पॉलिसी खरीदने के लिए आपको सपोज पैसे चाहिए, तो आप वो भी वो फंड एसेट में दिख रहा होगा ना, कैश फॉर्म में, तो उस कैश करके आप पॉलिसी खरीद सकते हो। तो ड्यूअल पर्पस फॉलो करता है वो फंड। तो बेसिकली जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड क्या है? इट इज जस्ट लाइक आरडीडी। व्हाट इज आरडीडी फॉर डेटर्स? जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड इज फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जैसे डेटर से कुछ बैड डेट्स होता है तो आरडीडी अब्सॉर्ब करता है, वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेचते वक्त कुछ लॉस हुआ तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अब्सॉर्ब कर लेगा। दैट इज द मीन। और फिर नई पॉलिसी अगर खरीदनी होगी तो उसके पैसे भी हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड के कैश में से यूज कर सकते हैं। दैट इज द मेन यूज ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर आपको नई पॉलिसी नहीं खरीदनी है तो वापस डाल दो। जैसे आरडीडी की जरूरत नहीं है तो वापस पीएनएल में डाल देते हो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड की जरूरत नहीं है, वापस पीएनएल में डाल दो, ट्रांसफर कर।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा सेम है, डिट्टो सेम, समझ आ रही है? सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू दिस आइटम, लीज होल्ड बिल्डिंग एंड लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। कैन यू ऑल सी दैट? अभी लीज होल्ड बिल्डिंग आपका एसेट है और लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड क्या है? उस बिल्डिंग को अगर बेचा और कुछ लॉस वगैरह हुआ तो लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए वो फंड रखा हुआ है, सिंपल एज दैट। तो लीज होल्ड बिल्डिंग का देखो, अगर आप आंसर में पढ़ोगे, सॉरी इन द एडजस्टमेंट, इफ यू रीड लीज होल्ड बिल्डिंग का कुछ दिया है वैल्यू, लीज होल्ड बिल्डिंग रिमेनिंग एसेट्स में डाल दिया है लीज होल्ड बिल्डिंग को 86,700, इंडिविजुअली नहीं पता कितना आया। तो लीज होल्ड बिल्डिंग बेच के समझो मेरे को 12,000 रुपया मिला, 12,500 की बिल्डिंग है, 12,000 मिला, तो 500 रुपया लॉस वो फंड अब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी का 5,500 अपना ही है ना, बिजनेस का प्रॉफिट है, तो दैट विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल। तो मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली सिमिलर टू आरडीडी। अच्छा, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आरडीडी जैसा है? तो आपको एक बड़ी सी हिंट दी गई है प्रॉब्लम में। डेटर्स के सामने आरडीडी होता है या आरएफडीडी होता है, रिजर्व फॉर डेटर डाउटफुल डेट्स, या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है। वैसे ही लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड आपको एसेट, सॉरी लीज होल्ड बिल्डिंग आपको एसेट में दिखाई दे रही है, तो सामने लायबिलिटी में दिखेगा लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड। वो नाम इज द हिंट, दैट नेम इज द हिंट। लीज होल्ड प्रीमाइसेस है तो सामने लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड दिखेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिखेगा। डेटर्स है, आरडीडी दिखेगा। इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखेगा। तो ऐसे कोई एसेट के नाम पे यू हैव क्रिएटेड अ स्पेसिफिक फंड, मतलब क्या? मतलब ये कि वो आपका ही प्रॉफिट है, आपने क्यों रखा है साइड पे? उस लॉस के एसेट, उस एसेट के लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए। उस लॉस को अब्सॉर्ब करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है उस फंड में, वो आपके कैपिटल में ही जाने वाला है, पार्टनर को ही जाने वाला है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, फंड देख के पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देने का। इन टाइप के फंड को, जो आरडीडी है, लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है, जो एसेट को सपोर्ट करने के लिए फंड बनाया गया है, उसको आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इन द कैपिटल। उसको आप क्या करोगे? उसको आप फिलहाल क्रेडिट साइड पे दिखाओ रियलाइजेशन का, फिर अपने आप एसेट बेच बाज के कुछ लॉस वॉस हुआ है तो फंड में से एडजस्ट होके बचा हुआ पैसा एंड में जाने ही वाला है पार्टनर्स कैपिटल को, इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, so don't distribute these funds directly to partner capital, that's what I was trying to say. Accounting treatment is very easy, just transfer it to realization credit but do not pay off। इसलिए मैंने ये देखो, ये तीनों सेपरेटली रेड इंक में लिखा हुआ है, ये तीनों आपका एक टाइप का फंड है। All these three funds are created to support the assets. Okay, yes, what was the doubt? Yashvi? सर समझ गया अभी। Very good. Anyone any doubt in this part? तो और हम लोग ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अभी अभी मैंने बोला हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई इस फंड को अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है और रियलाइजेशन क्रेडिट में दिखाना है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? लुकिंग एट द क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग एसेट होगा। करस्पॉन्डिंग एसेट, उस एसेट का नाम का फंड होगा। डेटर है सामने, आरडीडी इज नॉट अ फंड, वो खाली लॉस के लिए बनाया गया है। बाकी फंड बनाने का मीनिंग क्या है? लॉस तो ऑब्जॉर्व करेगा, आपको नई जमीन खरीदनी होगी, नई बिल्डिंग खरीदनी होगी, तो वो पैसा भी आप फंड से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डिंग दिख रहा है सामने, बिल्डिंग फंड दिख रहा है आपको, या प्रीमाइसिस दिख रहा है, प्रीमाइसिस फंड दिख रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड दिख रहा है आपको। तो एसेट का नाम का ही फंड होगा। जॉइंट लाइफ, लाइफ पॉलिसी है, लाइफ पॉलिसी फंड दिख रहा है आपको। यही हिंट है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको लायबिलिटी में दिखाना है, लेकिन भाई लोग करना है उसको। फंड को कभी जिंदगी में हम लोग पे ऑफ नहीं करेंगे, हमारा ही प्रॉफिट है वो, तो लॉस को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल इन द पीएसआर। इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक आरडीडी, just like RDD, do not pay off these funds. Is this part clear? तो अगर आपको क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिखे
या रेवेन्यू रिजर्व दिखे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उनका कोई एसेट से पर्टिकुलरली लेना देना नहीं है, वो जनरल फंड रखे हुए हैं टू मीट सम कंटिंजेंसीज, ओके, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एसेट के लिए क्रिएटेड फंड्स हैं तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट मत करना, उनको रियलाइजेशन क्रेडिट में रखना, पे ऑफ मत करना, ऑटोमेटिकली पार्टनर के कैपिटल में चले जाएंगे एट द एंड ऑफ डिसॉल्व। और अगर सिर्फ लीज होल्ड बिल्डिंग दिया रहेगा तो उसका एसेट ही रखने तो का एसेट ही रखने का, खाली लीज होल्ड बिल्डिंग है तो एसेट में तो टेंशन ही नहीं है, एसेट तो एसेट ही रहेंगे सब, पॉलिसी भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, डेटर एसेट तो एसेट ही है। फंड दिखेगा तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट आइटम ओवर हियर इज फंड। एसेट तो नॉर्मल एसेट के जैसा रखो, बिकता है तो बेचो, नहीं बिकता है जीरो वैल्यू, इग्नोर इट, सिंपल एज दैट। गॉट इट? सो रिमेंबर, विल डू वन मोर सम विद दैट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड ऑल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के एक्चुअली 3 मेथड होते हैं प्रेजेंटेशन के, आपको सीए में है। ये एसेट मेथड, इसको रिजर्व मेथड बोलते हैं। ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, ये रिजर्व मेथड है, इसको रिजर्व मेथड बोलते हैं। वैसे 2 और मेथड है, एक्सपेंस मेथड एंड एसेट मेथड। ये आपको सब सीए फाउंडेशन में है, इधर आपको खाली बेसिक थोड़ा जानकारी के लिए है डिसोल्यूशन पार्ट में, ओके। मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा जब हम डेथ को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो डेथ का हम लोग सब रिवीजन वगैरह करेंगे, तब वापस आई विल कम बैक टू दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल द 3 मेथड्स, ओके। सो यहां तक क्लियर? अभी बैलेंस शीट एम्प्टी कर दी है। बैलेंस शीट एम्प्टी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज सेल ऑफ एसेट। तो लेट्स मूव टू सेल ऑफ एसेट्स। लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड फॉर 10,000। आपको ये समझ में आया स्टेटमेंट का मतलब? लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड फॉर 10,000। व्हाट इज दैट सरेंडर्ड फॉर 10,000 का मतलब? बेच दिया। बेच दिया। जैसे आप फर्नीचर बेचते हो, बिल्डिंग बेचते हो, वैसे लाइफ पॉलिसी बेच दिया। एंट्री आपकी वही होगी, सेम बाय बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन। लाइफ पॉलिसी या जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना मिला बेच के? 10,000 रुपया। तो अगर आप इधर ध्यान से देखो, आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड तो 12 था, उसमें से आपका लॉस हुआ है 2, तो वो 2,000 का लॉस अब्सॉर्ब हो गया। अब बचा हुआ 10 है ना जो फंड का, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे 12,000 है ना, डेबिट में कितना लिखा है? 12, और क्रेडिट में कितना लिखा है? 12 और 10 22, 22। तो डेबिट में इट इज 12 एंड क्रेडिट में इट इज 22। So automatically your net gain is of 10,000, which is due to that balance in the fund. That 10,000 will automatically be transferred to partners' capital in PSR at the end of dissolution. Is this clear? Got it, all of you? Just like RDD used to get transferred, this also will get transferred automatically. So आपको ट्रीटमेंट में खाली एक चीज याद रखनी है, एक ही चीज याद रखनी है, क्या? फंड्स को डाल देना है रियलाइजेशन, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। Okay, do not distribute them, transfer them to realization and do not pay off, just transfer them to realization credit, finish. बाकी तो एसेट को सेम ट्रीटमेंट देना है, बेच दिया एसेट, पैसे आ गए। इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय यासिन, तो टेक ओवर अलग से करते हैं। Xavier agreed to discharge बैंक लोन, वो भी अलग से है। रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर 86,700। तो रिमेनिंग एसेट तो मैं यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स लिख देता हूँ, जनरल बाकी सब 86,700। तो टोटल पैसा कितना आया आपको? 96,700। सभी एसेट को बेच बाच के यू गॉट 96,700। करस्पॉन्डिंग एंट्री बाय बैंक का हो जाता है बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 96,700। एसेट बेच के आपको मिला 96,700 बाय बैंक एंड टू रियलाइजेशन, बराबर है। फिर दिया है आपको मिस्टर यासिन, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय मिस्टर यासिन फॉर 8,000। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर, तो क्या एंट्री करोगे आप? यासिन टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, तो क्या एंट्री आना चाहिए बताओ? बाय व्हाट? यासिन कैप टू रियलाइजेशन। यासिन कैपिटल, यासिन कैप टू रियलाइजेशन, तो बाय यासिन कैपिटल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज टेकिंग ओवर एट 8,000. So it took over the investments for rupees 8,000. Took over the investment for 8,000 by यासिन कैप का यासिन कैप में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। इसका कैपिटल हम लोग कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब कम हो गया। सेटलमेंट के वक्त इसको 8,000 कम देगा बिजनेस, दैट इज द मीनिंग। और फिर क्या है? एक्स एसेट पार्ट आई थिंक वी हैव टेकन केयर ऑफ, ओके।
एसेट पार्ट हो गया. गो टू लायबिलिटी. लायबिलिटी को पे ऑफ करने का एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू बैंक. रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट. व्हाट इज द एंट्री फॉर रियलाइजेशन टू बैंक? सबसे पहला यू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, दैट इज 900. सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 900. उसके बाद यू ट्राई टू पे ऑफ योर क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन. सो चेक व्हाट इन्फो दे हैव गिवन. उसमें दिया ज़ावियर अग्रीड टू पे ऑफ बैंक लोन. उसने टेक ओवर किया है. और बाकी क्रेडिटर्स का तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. तो क्रेडिटर्स अपने को बुक वैल्यू पे पे ऑफ करना पड़ेगा. तो क्रेडिटर्स आएगा 16,200. टोटल आएगा 17,100. इज दैट क्लियर? टोटल आएगा 17,100. टू बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगा बैंक में बाय रियलाइजेशन 17,100. 17,100. देन सर इसका जर्नल है. इसका जर्नल नहीं है. इसका जर्नल नहीं है. देन वी हैव व्हाट, एक लायबिलिटी टेक ओवर हुआ है. तो ज़ावियर ने लोन टेक ओवर किया. व्हाट एंट्री विल यू पास फॉर पार्टनर टेकिंग ओवर अ लायबिलिटी? टू ज़ावियर कैपिटल. टू ज़ावियर कैपिटल अकाउंट. टू ज़ावियर कैपिटल अकाउंट. वैसे क्या होता है? लायबिलिटी टू कैपिटल होता है. यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैपिटल. क्या लेके गया वो? बैंक लोन लेके गया. क्या भाव पे लेके गया? सेम भाव पे लेके गया. सेम भाव कुछ नहीं दिया है तो कितना भाव? 11,500. करस्पॉन्डिंग एंट्री टू ज़ावियर कैपिटल का हो जाएगा ज़ावियर कैपिटल में बाय रियलाइजेशन. मतलब बिजनेस ने इसको क्रेडिट दे दी. क्रेडिट दे दी मतलब ज़ावियर का कैपिटल बढ़ गया. मतलब बिजनेस विल पे 11,500 मोर to Xavier on settlement, final settlement. I think we have taken care of everything now. Assets भी हो गए, liabilities भी हो गए, लोन तो है नहीं. Calculate profit और loss. बोलो मेरे को क्या सर आपने सन्ड्री एसेट्स का टोटल नहीं किया. कर दो. बोलो मेरे को कितना आ रहा है. 94,700. और टोटल बताओ रियलाइजेशन का. Which side is bigger? करो टोटल. आई थिंक क्रेडिट बढ़ा रहा है यहाँ पे. प्रॉफिट आ रहा है. प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल? 96, 1,04,000, 124, 131, 132, 400, 154, 1,50,900 आ रहा है टोटल. Yes, sir. 1,50,900. आई थिंक प्रॉफिट आ रहा है ना. 94, 01, 111, 800, 122, 27,600 का आ रहा है सर प्रॉफिट. 27,600. 27,600 का प्रॉफिट है आपका. 27,600 का प्रॉफिट है. That will be two partner capital. All three partner, Xavier cap, Yasin cap, Zubair cap. Okay, Xavier, Yasin and Zubair. 27,600 को डिवाइड करो आप 3:2:1 में. कितना आ रहा है? 13,800, 9,200, 4,600. ओके. टू पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री पार्टनर कैपिटल में बाय रियलाइजेशन कितना था? 13,800, 9,200, 4,600. 13,800, 9,200, 4,600. बस इसमें कोई करंट भी नहीं है, कोई इंसॉल्वेंट भी नहीं है ना. तो सीधा सीधा बंद करो और डालो बैंक में. आई थिंक सबका सरप्लस है. तो 19,200, 19,200, 11,200 टू बैंक. इसका कितना है? 14,600, 14,600
14,600 or 30, 41, 44, 54, 55, 300, 55, 300, 55, 300. ओके, टू बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री इधर आ जाएगा बाय जावियर कैप, बाय यासिन कैप, बाय जुबैर कैप. That is 55, 300, 11, 200, 14. So this tallies on 96, 97, 98, 200. 98, 200 page should tally. That is your chotu sa problem. Problem was very small, easy, but only different part was those funds. How to identify the funds? All of you got that? How to identify the funds? Okay, write down a note. Write down a note. सम के नीचे लिखो, लास्ट पेज पे लिखो, जिधर आपने स्टेप्स लिखा हुआ है, मैंने डिसोल्यूशन का स्टेप्स दिया है उधर लिख दो. डिसोल्यूशन प्रोसेस का स्टेप्स जहाँ पे दिया है वहां पे भी लिख सकते हो. लिखो. सर 1 मिनट रुको ना. सर मतलब आप कोई भी एसेट का ऐसे फंड बना सकते हो ना? जनरली आपको लगता है कि किसी एसेट में ऐसा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लॉसेस हो सकता है. यस, कैन मेक इट फॉर एनी एसेट यू वांट. कंजर्वेटिज्म बोलता है ना अपने को कि शो योर लॉसेस इन एडवांस. तो आप वो एसेट के लिए प्रोविजन बना के दिखा सकते हो. या फिर आपको वो एसेट को रिप्लेस करना है, आपको वो एसेट बहुत बड़े वैल्यू का एसेट है, बट बहुत बहुत बड़े वैल्यू का प्लांट है, बहुत बड़े वैल्यू की जमीन है, तो आपको अगर वो जमीन खत्म हो गई, लीज खत्म हो गई, प्लांट का वैल्यू खत्म हो गया डेप्रिशिएट होके, तो आपको बड़ा खर्चा लगने वाला है, तो आप उसके लिए भी ये फंड क्रिएट करके रख सकते हो. हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो फंड में डाल के सेव कर सकते हो. फंड में दिखाने का मतलब क्या है? आप अपने कैपिटल में से वो पैसा निकाल के अलग से फंड बना रहे हो. एसेट साइड तो रोकड़ा ही है. आप क्या समझो, कैपिटल 10 लाख है और कैश 10 लाख है, तो आप क्या कर रहे हो? कैपिटल में से 1 लाख निकाल के बिल्डिंग फंड बना के समझो रख रहे हो 1 लाख का. मतलब वो 1 लाख का जो कैश है वो अभी बिल्डिंग खरीदने के लिए ही वापरोगे. कैश एसेट में 10 लाख ही है, कैपिटल अभी 9 लाख हो गया और फंड 1 लाख हो गया. ऐसा हो रहा है. तो 1 लाख का फंड का पैसा यू कैन यूज टू बाय बिल्डिंग ओनली, तो आप उसको टच नहीं करोगे, तो वो सिक्योर हो गया. ऐसा है. तो फंड बनाने का लॉजिक यही है कि उसके सामने जो एसेट है, जो कैश है, कहीं और इस्तेमाल नहीं करोगे, वो बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करोगे, या अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए करोगे, या पॉलिसी है तो पॉलिसी खरीदने के लिए करोगे. ऐसा होता है. ये फंड बनाने का यूज यही होता है. जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, आप थोड़े बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, तो you will have different funds. You will have your marriage fund, you will have your child fund, you will have your retirement fund, okay, you will have your holiday fund. तो आप उस फंड में उतना पैसा सेव करके रख रहे हो, so that you don't touch that money. That money can be used for only that purpose. So उसको प्लानिंग बोलते हैं आपका फाइनेंशियल. और एक बिजनेस ट्राई करता है करने का. okay? So now, अरे आयुष क्या कर रहा है? Now, write down that note. RDD, RFDD, RDD, RFDD, joint life policy fund. RDD, RFDD, joint life policy fund, leasehold redemption fund, leasehold redemption fund, leasehold redemption fund, investment fluctuation fund, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. याद है ये एडमिशन के भी एक चैप्टर में आया था, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन, तो किसी को याद हो तो
15,000 का था और कुछ इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हुआ था, तो हमने पहले इन्वेस्टमेंट प्रोविजन से एडजस्ट किया था और फिर रिवाइल में डाला था ऊपर का। ये वही था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट प्रोविजन. So investment fluctuation fund slash investment provision. RDD, RFDD, joint life policy fund, leasehold redemption fund, investment fluctuation fund slash investment provision are the funds created to support the assets. 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 Full stop. Therefore, they will not be distributed in partners' capital directly. Therefore, they will not be distributed in partners' capital directly. Therefore, they will not be distributed in partners' capital directly, but will be transferred to realization credit. Therefore, they will not be distributed to partners' capital accounts directly, but will be transferred to realization credit. Full stop. But we will never pay them off. 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 Full stop. After adjusting for losses on respective assets, these funds will automatically get distributed to partners' capital. After adjusting for losses on respective assets, losses or profits, कुछ भी हो सकता है, generally loss ही होता है. After adjusting for losses on respective assets, these funds will automatically get transferred to partners' capital in profit sharing ratio. These funds will automatically get transferred to partners' capital in profit sharing ratio. In profit sharing ratio. सर वापस बोलो ना वो losses वाला. After adjusting for losses on respective assets, these funds will get automatically transferred to partners' capital account in PSR. These funds will automatically get transferred to partners' capital account in PSR. These funds will automatically get transferred to partners' capital accounts in PSR. Come to sum number 14, draw for sum number 14. 14th sum. 14th sum has also got joint life policy and joint life policy fund. Okay. And loan वगैरह कुछ नहीं है, I think वहाँ पे partners loan नहीं है. शीतल is not a partner. Okay, partners loan नहीं है, शीतल्स loan है. शीतल is a third party. So only 3 accounts. Current भी नहीं है, I think. Yeah. So you'll have realization bank capital. बना लो. Realization bank and capital. सर कौन सा सम? 14. Shefali, Sadhana, Sonali. 14th problem.
कर लो ड्रॉ। The books of Shefali, Sadhana and Sonali. Profits and losses are shared in the ratio of 2:2:1. कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट है। Let's start. सर रुको थोड़ा, हम लोग को पूरा बनाने दो। बनाओ बनाओ। सर ये जो लाइफ पॉलिसी वाला है वो सिर्फ पार्टनरशिप में ही होता है ना, मतलब सिंगल फर्म में नहीं होता है ना? सिंगल फर्म में नहीं होता। सिंगल फर्म में तो उसका पर्सनल लाइफ पॉलिसी वही लाइफ पॉलिसी, क्योंकि वही है ना बिजनेस का करता है। सर पार्टनरशिप में इसके लिए होता है कि किसी एक पार्टनर का डेथ हो जाए या एक कोई रिटायर हो जाए तो फंड की जरूरत पड़ती है ना उसको देने के लिए, एग्जीक्यूटर को पैसा देने की जरूरत पड़ती है ना, कैश चाहिए ना। हाँ तो मतलब वो जो डेथ ऑफ पार्टनर में जो सब होता है तो यही पैसे से होता है। हाँ, अगर पॉलिसी हुआ तो, अगर नहीं हुआ, बिजनेस में कैश है सफिशिएंट तो प्रॉब्लम नहीं है। अपने को हर एक समय की तो पॉलिसी था नहीं था डेथ ऑफ अ पार्टनर में, हर एक समय नहीं दिखता था। तो अगर पैसे की दिक्कत है, कुछ कमी है, इनको लगता है कि कम पड़ेगा तो वो लोग पॉलिसी निकाल के रखते हैं, तो एक लमसम पैसा आ जाए सपोर्ट के लिए डेथ पे देने के। और उसका प्रीमियम भी भरना पड़ता है ना, प्रीमियम आपका खर्चा है के जैसा इधर एसेट के फॉर्म में दिखेगा। तो वो बाद में वो ये जो फर्म है उसका प्रॉफिट में से होगा ना? हाँ, प्रॉफिट में से, फर्म के प्रॉफिट में से। इधर हम लोग जो दिखा रहे हैं एसेट बता रहे हैं, तो वो फर्म अपने प्रॉफिट में से वो एसेट खरीद रहा है। वो जो पॉलिसी दिख रही है ना, तो तुम्हारा प्रीमियम भरा हुआ है, उसको तुमने राइट ऑफ करके सरेंडर वैल्यू पे लाया है, तो तुम्हारा ही पैसा है, एसेट ही है। यस, व्हाट वाज द डाउट जनम? सर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है ना, उसमें अगर पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट होता है कोई, तो ये चेंज होता है पॉलिसी? एडमिशन के वक्त पार्टनर का चॉइस रहता है, रिटायरमेंट के वक्त भी पार्टनर का चॉइस रहता है। कैसा रहता है? एडमिशन और रिटायरमेंट के वक्त पार्टनर्स अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दे कैन, देयर विश, ओके। या सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर करके, डिसकंटिन्यू करके, सरेंडर वैल्यू लेके एडमिशन के बाद वापस नई पॉलिसी ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। या अगर उसको रखना है, जैसे आपने फर्नीचर रखा हुआ है, बिल्डिंग रखा हुआ है, प्लांट रखा हुआ है, उसको खाली रीवैल्यू किया है, तो ऐसे आप इसको रीवैल्यू कर सकते हो, उसको अपवर्ड वैल्यू करके थोड़ा प्रॉफिट लॉस शेयर करके ज्यादा वैल्यू पे वो पॉलिसी दिखा सकते हो आप, इन केस ऑफ एडमिशन और इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो। डेथ के केस में है ना, आप कभी रखते नहीं हो। डेथ के केस में हमेशा आप सरेंडर कर देते हो, बाकी दो पार्टनर भी अपना, मतलब इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी होता है, वो कंसेप्ट आपको आया नहीं अभी सर। मतलब डेथ के केस में तो आपको क्लेम ही मिल जाता है, और अगर इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी तो आप सरेंडर कर दोगे डेफिनेटली। एडमिशन और रिटायरमेंट में रख भी सकते हो या सरेंडर भी कर सकते हो, ऑप्शन है। या सर मतलब डेथ में आया तो तभी डिस्ट्रीब्यूट कर देने का ना, रिजर्व्स को जैसे। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने का उसको, अरे भाई अभी बताया तो सही। डेथ के केस में तेरा पॉलिसी दिख रहा है, समझ तेरे को 49,000, हाँ और डेथ के केस में तेरे को क्लेम मिलेगा हाँ 1,00,000 रुपया क्लेम है, समझ। हाँ। तो फर्नीचर है 49,000 का, तूने 1,00,000 में बेचा, तो क्या एंट्री करेगा? फर्नीचर प्रॉफिट ऑन फर्नीचर टू, सॉरी, कैश टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर। बराबर है, कैश टू फर्नीचर टू प्रॉफिट ऑन फर्नीचर। यहाँ पे वही करना है, कैश टू पॉलिसी टू प्रॉफिट ऑन पॉलिसी की जगह डायरेक्टली कैपिटल, प्रॉफिट जाता है कैपिटल। ट्रीट दैट पॉलिसी लाइक योर एसेट ओनली। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं है, मीनिंग में बता रहा था तुमको क्यों होता है, काय के लिए होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पॉलिसी ट्रीट इट लाइक नॉर्मल एसेट ओनली। जॉइंट लाइफ पॉलिसी थिंक लाइक इट इज फर्नीचर, सिंपल। जो फर्नीचर के साथ करते हो वो पॉलिसी के साथ करते हो। सरेंडर वैल्यू मतलब सेल वैल्यू, क्लेम वैल्यू मतलब सेल वैल्यू। डेथ हो गई तो क्लेम मिलेगा, अगर डिसकंटिन्यू करके बेचते हो तो सरेंडर मिलेगा, दोनों सेल वैल्यू है तुम्हारा। और जो प्रॉफिट लॉस हुआ सब पार्टनर में बढ़ जाएगा, TSR। आ जाते हैं कैपिटल्स में। पार्टनर कैपिटल बैलेंस स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस। सर ये लास्ट सम है।
नहीं, इसके बाद एक और है, छोटा सा समय, फटाफट करो, इसका जर्नल भी है। बाय बैलेंस बीडी स्टार्ट करो, जाने दो ना। शेफाली एंड साधना राइट फास्ट, 1,40,000 and 70. Sonali's capital is 40,250. Okay. Do you have any reserves? अभी वापस जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड आ गया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का क्या करोगे? शो इट अंडर रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. ओके, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट. फंड देख के लालच में मत आना, सिंपल. लॉसेस कुछ नहीं है, पीएनएल अकाउंट कुछ नहीं है, एसेट साइड पे बैंक बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 18,970. Go to the other assets, starting with two sundry assets. Starting with machinery, 141,750. Stock was 26,425. लाइफ पॉलिसी, ये लाइफ पॉलिसी दिख रहा है, इसका मतलब क्या? आपने लाइफ पॉलिसी निकलवाई है, आपने प्रीमियम भर के रखा है और उस पॉलिसी को आपने सरेंडर वैल्यू पे रखा हुआ है. ये जो 49,000 दिख रहा है ना, ये क्या है? ये टोटल प्रीमियम से थोड़ा कम वैल्यू होगा. ये लॉजिक समझा आपको? सरेंडर वैल्यू और आपका प्रीमियम डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? ये 49,000 जो दिख रहा है ना, आपने प्रीमियम भरा होगा इस पे, समझो 60,000 खर्चा किया है, 60,000 प्रीमियम का, लेकिन उसमें से आपने डेप्रिशिएट करके 49 पे दिखाया है उसको, क्योंकि आपको लास्ट इंफॉर्मेशन मिली थी कंपनी से कि आपको ये पॉलिसी अगर बेचने जाओगे, सरेंडर करने जाओगे तो 49 हाथ में आएंगे, तो इसलिए आपने 49 पे दिखाया हुआ है. तो लाइफ पॉलिसी विल बी ऑलवेज शोन एट सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू मतलब जो वैल्यू आ सकती है आपको बेच के, डिसकंटिन्यू करके. ओके, और ये हर साल आप उसको वैल्यू करते हो, हर साल आप चेक करते हो सरेंडर वैल्यू कितनी है. अगर सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कम है तो आप उसको डेप्रिशिएट कर देते हो. बेसिकली ये एसेट है आपका 49,000 का अभी फिलहाल. कोई मर जाएगा तो आपको क्लेम वैल्यू मिलेगा. क्लेम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, मालूम नहीं अपने को, वो कवर वैल्यू होता है. अगर डिसकंटिन्यू करोगे तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा. तो डिसकंटिन्यू द पॉलिसी, यू विल गेट सरेंडर वैल्यू. ओके, लाइफ पॉलिसी हो गया. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट्स अगेन, 51905. बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर. बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर, बैड डेट्स नहीं होता. बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर. 32550. आरडीडी अलग से दिखाना है, मैं इधर अलग से दिखा रहा हूँ. बाय आरडीडी अकाउंट 2100. वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी अलग से दिखा सकते हो आप चाहिए तो. यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अकाउंट, दैट इज how much? 49,000 rupees. ओके, आरडीडी का एक कजिन ब्रदर है, एसेट के लिए मेंटेन किया गया है उसको. और ये टोटल करके बताओ किसने किया है तो. 301630. 301630. बाकी का सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दो. बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, कैपिटल लिखा, शीतल्स लोन. शीतल्स लोन, शीतल इज अ थर्ड पार्टी, इसका लोन जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट साइड 35,000. और क्या क्रेडिटर्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स आर 64,750. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड तो अलग ही पड़ा है. 95, 99,750 इज द टोटल. 99,750 इज द टोटल. तो ये हमने पूरा बैलेंस शीट खाली करके ट्रांसफर कर दिया है. Is that clear? Now,
Again, this sum has got one important point. If you read the first point, क्या दिया है पढ़ो. On scrutiny, it was noticed that investments worth 10,500 owned by the firm were left out to be recorded. Record करना रह गया था 10,500 का investment. This was given over to our creditors against their dues at this value, that is 10,500. क्या हुआ यहाँ पे? एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, अनरिकॉर्डेड एसेट था 10,500 का. आपका बुक वैल्यू 0 था, लेकिन बेचने जाते तो 10.5 मिलता. 10,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, अनरिकॉर्डेड था, बुक वैल्यू 0 थी. वो आपने बेचा नहीं, आपने पैसे नहीं लिए उससे. आपने क्या किया, वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली उठा के आपने क्रेडिटर को दे दिया, बोला रख 10,500 सेटल. अब कैसे दिखाओगे इसको प्रॉब्लम? सर एंट्री नहीं आएगी क्रेडिटर्स टू इन्वेस्टमेंट से, तो नहीं आएगी ना, एक भी अकाउंट नहीं. सर सिर्फ क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे अपना. हाँ, वेरी गुड. क्रेडिटर्स में डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये अमाउंट. देखो, तुम ऐसे सोचो कि तुमने वो 10.5 का इन्वेस्टमेंट बेचा, तुमने वो 10.5 का इन्वेस्टमेंट बेचा, तो क्या एंट्री आता है तुम्हारा? इधर बाय बैंक आएगा. डोंट राइट दिस, जस्ट डूइंग इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. डोंट राइट दिस. बाय बैंक अकाउंट करते हो ना, बैंक टू रियलाइजेशन, सेल ऑफ एसेट. याद है, रिकॉर्डेड एसेट हो कि अनरिकॉर्डेड एसेट हो, एंट्री रिमेन सेम. इन्वेस्टमेंट 0 का था, सीधा 10.5 में बेचा. सो बाय बैंक इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए 10,500. पैसा आ गया, समझो इन्वेस्टमेंट बेच के 10,500 आ गया. और फिर क्रेडिटर को चुकाने का एंट्री क्या होता है? टू बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स को कितना चुकाना है आपको? ऊपर देख लो, क्रेडिटर्स को चुकाना है 64,750. तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा होता, आप इन्वेस्टमेंट बेचते, 10,500 लेते, 10,500 लेते और क्रेडिटर्स को पूरा का पूरा चुका देते, 64,750. आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट बेच के ना पैसा आया और ना वो पैसा क्रेडिटर को गया. मतलब बिजनेस में 10,500 आया भी नहीं, गया भी नहीं. डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट उठा के क्रेडिटर को दे दिया. बाहर का बाहर इन्वेस्टमेंट उठा के क्रेडिटर को यू हैव सेटल्ड. तो ये 10,500 हटा दो यहां से, और यहां से भी 10,500 हटा दो, तो आप नेट क्रेडिटर को कितना पे करोगे? 63,250. समझ में आई बात? सर 54,250 10,500 है. हाँ सर, सॉरी सर, 54,250, 10,500 सब्ट्रैक्ट करो. तो ये बात समझ में आई क्या किया मैंने? अगर बाहर आप कोई एसेट दे देते हो क्रेडिटर को या कोई लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, तो बुक में उसका कोई एंट्री आने वाला नहीं है. इज दैट क्लियर? यू विल नॉट हैव एनी एंट्री इन द बुक्स. सीधा वो लायबिलिटी को कम कर दो, जितना कम करना है उतना कम करके डायरेक्टली पे ऑफ कर. आई विल गिव यू अ नोट फॉर दैट. रिमेंबर, ये मत लिखना लोग डायरेक्टली. मतलब कोई एसेट अगर लेते हैं लायबिलिटी को सेटल करने के लिए, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ही दिखाना पड़ेगा. डायरेक्ट इफेक्ट ही दिखाने का. यस, डायरेक्ट ही दिखाने का. अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड एसेट. ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट है. रिकॉर्डेड तो इधर दिखेगा तुमको, सन्ड्री एसेट, फिर वो क्रेडिटर से कम करके इधर से दिखाने का. अनरिकॉर्डेड है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, डायरेक्टली क्रेडिटर में से कम करके चला जाएगा. सर मतलब इसका जर्नल एंट्री कुछ आएगा ही नहीं? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. डायरेक्टली क्रेडिटर को नेट अमाउंट पे करने की एंट्री आएगी. अभी लिख दो बाय बैंक. सेल ऑफ एसेट करते हैं हम लोग. सेल ऑफ एसेट में सबसे पहला देखो कौन सा एसेट बिका. इन्वेस्टमेंट बेच के कोई पैसा आया है? बताओ मेरे को. Will you sell these investments and receive 10,500? सर वो टेक ओवर हुआ है ना? टेक ओवर डायरेक्टली क्रेडिटर को दे दिया है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट. ओके, तो इन्वेस्टमेंट वो 10,500 का कोई एंट्री नहीं आएगा. सेकंड पॉइंट पढ़ो. जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड फॉर 42,000. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड फॉर 42,000. बेच दिया. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बेच के कितना मिला? 42 मिला. देखो आपको कितना लग रहा था, कितना मिलेगा? 49 लग रहा था. 2-3 महीने आपने पॉलिसी का वैल्यू चेक किया होगा कंपनी से, आपको आंसर आया होगा 49. तो आपने 49 पे डेप्रिशिएट करके दिखा के रख दिया, 49,000 है इसका वैल्यू. बट
49 के जगह हाथ में कितना आ रहा है अभी 42, 7,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। वो 7 का लॉस ये फंड अब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी का 42,000 ऑटोमेटिकली विल बी ट्रांसफर टू योर पार्टनर्स कैपिटल। इज दैट क्लियर? गॉट इट? दैट्स योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू। आपने डिसकंटिन्यू किया, आपको 42,000 मिल गए। व्हाट नेक्स्ट वी हैव, शेफाली एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स, वो तो टेक ओवर हुआ है। एंड शीतल्स लोन, वो भी टेक ओवर हुआ है। साधना टुक ओवर स्टॉक, टेकन ओवर। बुक डेट्स टेकन ओवर। मशीनरी रियलाइज्ड, फाइनली मशीनरी रियलाइज्ड है, तो मशीनरी बेच के आपको पैसा मिला है 292500। एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू। अब ये रिमेनिंग डेटर्स का क्या सीन है, देखो एक डेटर का वर्किंग नोट बना लो तो अच्छा रहेगा। All working note for debtors. Check and tell me what is the book value of debtors. बोलो। 51,905. Book value of debtors is No, 32,550. 550. 32,550 is the book value of debtors. Can you all see that? अभी इसका मैं टुकड़ा कर रहा हूं, यहाँ पे देखना ध्यान से। क्या दिया है, पॉइंट नंबर 4 पढ़ना सब लोग। पॉइंट नंबर 4, साधना टुक ओवर स्टॉक एट 24,500, मतलब 24,500 में स्टॉक लेके गई। एंड बुक डेट्स ऑफ 17 एट 14, मतलब 17,000 का बुक डेट, 17,000 का डेटर साधना ने टेक ओवर किया। टेकन ओवर बाय साधना, टेकन ओवर बाय साधना एट व्हाट प्राइस, 14,000। तो 17,000 का डेटर चला जा चुका है साधना के पास, तो बचा कितने का? हेलो, 15,550 का बचा। 15,550 का डेटर्स बच गया। अग्री ऑल ऑफ यू? अभी ध्यान से पढ़ो क्या दिया है एकदम इन द 5th पॉइंट। मशीनरी रियलाइज्ड 292,500। 1550 का बचेगा ना। अरे 17,000 माइनस करो ना 32,550 में से। सर बराबर है, बराबर है 15,550। तो इतना डेटर्स बच गया है ना 15,550 का। अभी पढ़ो क्या दिया है 5th पॉइंट पे। मशीनरी 292,500 and the remaining debtors realized at 50% of the book value. रिमेनिंग मतलब ये रिमेनिंग कैसे मिला, समझ में आया सबको? टोटल में से 17,000 के डेटर्स साधना लेके गई 14,000 में, वो टेक ओवर है। तो 15,550 के बचे, वो कितना रियलाइज हुआ है उसका 50% रियलाइज हुआ है। तो कितना होता है रियलाइज? 7775. 7775। तो ये डेटर से कितना पैसा आया रियलाइज्ड? 7775, 50% ही रियलाइज आया। बाकी का बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, अपने आप लॉस एडजस्ट होएगा। इज दिस क्लियर? सो 14,000 is your takeover value and 7775 is your realized value. All of you got that? तो ऐसा कुछ रहेगा। ब्रेकअप तो वर्किंग नोट बना के दिखा देना। अभी मैं डेटर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, बुक डेट्स भी लिखो, डेटर्स भी लिखो, एक ही बात है। कितना आएगा रियलाइज्ड वैल्यू, कितना आएगा बाय बैंक में, कितना आएगा डेटर्स? 7775. 7775। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? 14 इज द टेक ओवर वैल्यू, वो टेक ओवर एंट्री में करते हैं। ये सेल वैल्यू है, डेटर को बेच के इतना पैसा आया। अच्छा, और कोई एसेट रियलाइज हुआ है? चेक करके देख लो एक बार, जस्ट चेक। एनी अदर एसेट दैट हैज रियलाइज्ड नहीं हुआ है तो टोटल करो, कितना आ रहा है ये टोटल? 42,295। 3,42,275. 42,275। Yes. ओके, 342,275। तो बैंक में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, पैसा आया रिसीट साइड 292,275, 292,275। अभी एसेट सोल्ड के बाद जाते हैं एसेट टेकन ओवर पे। तो जरा चेक करो आराम से और बताओ कौन सा एसेट्स टेक ओवर हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में पॉलिसी है, पॉइंट नंबर 3 में है। देखो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। ऑल ऑफ यू रीड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3,
शेफाली अग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स फॉर 61,250 दिख रहा है. सो एंट्री क्या बनेगा? एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर का एंट्री क्या बनता है? बाय शेफाली क्या? बाय शेफाली कैप. क्या लेके गई वो? इन्वेस्टमेंट्स लेके गई. शेफाली टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट व्हाट प्राइस? कितने में लेके गई इन्वेस्टमेंट? 61,250. ये रिकॉर्डेड था इन्वेस्टमेंट. ये अनरिकॉर्डेड 10.5 वाला अलग ही था. 12 बार जो क्रेडिटर को दिया है हमने, उसका कोई एंट्री नहीं है. सर रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स तो कम है, 51,000 में है वो। हाँ तो अच्छा है ना, अप्रिशिएट होकर गया, थोड़ा प्रॉफिट एक हुआ. बार डेटर्स का Profit वर्किंग क्या नोट है? दिखाओ. समझा क्या हुआ? यशवी, डेटर्स वाला वर्किंग. व्हाट हैपेंड यशवी? सर टू रियलाइजेशन 34,227. रॉन्ग अमाउंट. क्या लिखा है? 34,227 का. ओके. थ्री फोर टू टू सेवन. सर इसका जर्नल है ना? हाँ, ये किया. शेफाली वाला समझा, ज्यादा प्राइस पे लेके गई, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ. अच्छा है ना, अप्रिशिएट हो गया होगा थोड़ा इन्वेस्टमेंट. देन और क्या टेक ओवर हो रहा है एसेट साइड पे? देखना फोर्थ पॉइंट पे, देखो क्या दिया. साधना टुक ओवर स्टॉक फॉर 24,500. साधना टुक ओवर स्टॉक. तो बाय साधना कैपिटल, बाय साधना कैपिटल अकाउंट, शी टुक ओवर स्टॉक फॉर 24,500. और एक चीज साधना ने टेक ओवर की है, याद रखना, पढ़ना आगे. साधना टुक ओवर स्टॉक फॉर 2,500 एंड बुक डेट्स ऑफ 17 at 14. बुक डेट्स मतलब डेटर्स. 17,000 के डेटर्स 14,000 में लेके गई. तो उसने दो एसेट टेक ओवर किए हैं, स्टॉक एंड डेटर्स. तो 28 और यहाँ पे आएगा 38,500. दिस इज 38,500. इज दैट क्लियर? 38,500. स्टॉक एंड डेटर्स दो एसेट टेक ओवर किए. फिर बस आई थिंक और कोई एसेट टेक ओवर नहीं हुआ है. करस्पॉन्डिंग एंट्री कर दो. बाय शेफाली बाय साधना का टू रियलाइजेशन. बाय शेफाली बाय साधना का टू रियलाइजेशन. शेफाली के कॉलम में 61,250, साधना के कॉलम में 38,500. शेफाली कॉलम 61,250, साधना कॉलम 38,500. दो पार्टनर ने ऐसे टेक ओवर किया. एंट्रीज आर ऑल सेम, खाली अमाउंट का थोड़ा देखने का कैलकुलेशंस. So I think asset part has been taken care of. Let's move to liabilities and pay off the liability. What is the entry to pay off liabilities? What is the entry to pay off liabilities? Realization to bank. Bank. Realization to bank, right? Realization to bank. So check for dissolution expense. सबसे पहला check for dissolution expense. Do you have any? Yes, 2,100. Last point. Point number 6. Point number 6 में दिया हुआ है realization expenses paid are 2,100. Can you all see that? Business ने पे किया है, ठीक है. ये और आगे क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में क्या दिया है? शीतल्स लोन आई थिंक टेक ओवर हो गया है. शीतल्स लोन टेक ओवर हो गया है. क्रेडिटर्स को हमने पे ऑफ किया है. मेरे को बात बताओ, क्रेडिटर्स को विल आई पे 64,750? No. क्यों 64,750 नहीं पे करूंगा? 64,750 के बदले मैंने उसको 10,500 का इन्वेस्टमेंट उठा के दे दिया है ना, अनरिकॉर्डेड वाला. तो उतना कम हो जाएगा. शुरू में बताया था ना. तो अभी कितना दूंगा मैं उसको? 53,250 दूंगा. 53,250 दूंगा, बराबर है. I will pay only 53,250. Now you just check and tell me, do you have any unrecorded liability that you need to pay off? Do you No. have any unrecorded liability that you need to pay off? Please check and tell me. नहीं है? सर 54 to 50. 54 to 50. 54 to 50. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं है, तो इतना ही पे ऑफ किया तो कितना होता है ये? 56,350. 56,350 इज द टोटल. टू बैंक का हो जाएगा बैंक में बाय रियलाइजेशन. 56,350. सो ये था अपना
liabilities paid off. अभी liabilities taken over भी है. Please check. What is a liability taken over? What is a liability taken over? शीतल्स लोन टेक ओवर हुआ है. किसने किया है? पढ़ना जरा. पॉइंट नंबर 3 रीड करो. पॉइंट नंबर 3. Shefali agreed to take over investments for 61,250 and to pay out Sheetal's loan at 35,000. So what entry you should pass? Shefali ने take over किया है Sheetal's loan. So what entry you will pass? Realization to Shefali Capital. Realization to Shefali Capital. Okay. Liability takeover का उल्टा. Realization to partner capital. क्या टेक ओवर किया उसने? शीतल लोन टेक ओवर किया है. क्या प्राइस पे टेक ओवर किया है? प्राइस पे Same. 35,000 पे किया है. सेम प्राइस है 35,000. ओके. टू शेफाली कैप का करस्पॉन्डिंग एंट्री शेफाली कैप में बाय रियलाइजेशन. शेफाली के कॉलम में 35,000. इसको बिजनेस अभी इतना पैसा ज्यादा देगा सेटलमेंट. आई थिंक खत्म हो गया. ऑल एसेट्स लायबिलिटीज हैव बीन टेकन केयर ऑफ. प्लीज चेक. कुछ बचा तो नहीं है? अगर नहीं बचा तो टेल मी द टोटल. 592875. 592875. प्रॉफिट है 592875. प्रॉफिट ऑफ 199895. 199895. किसको जाएगा? शेफाली, साधना, सोनाली. बताइए इसका टोटल इंडिविजुअल प्रॉफिट ब्रेकअप. 2:2:1 इज द PSR. तो कितना आता है? बोलो बोलो बोलो. 79958 79958 39979. 39979. टू पार्टनर कैप का हो गया. पार्टनर कैप में बाय रियलाइजेशन 79958 79958 39979. अभी कोई इंसॉल्वेंट नहीं हुआ. कुछ झंझट नहीं इंसॉल्वेंसी का. कुछ करंट नहीं है. डायरेक्टली कैपिटल का पैसा यू पे ऑफ और यू रिसीव. सो आई थिंक ऑल द पार्टनर्स आर हैविंग सरप्लस. नहीं, एक का डेफिसिट है. इसका 40,250 वाले का डेफिसिट है. 271 बाय बैंक अकाउंट 271. बाकी दोनों का टोटल बोल दो. 254958 शेफाली का. हाँ. और उसमें टू बैंक में 193708. ओके. और साधना का टोटल 149958. बराबर 11145. 11145. टू बैंक का हो जाएगा बाय शेफाली कैप, बाय साधना कैप, and इधर टू सोनाली कैप. tallies on 361516. 361516. Draw the journal quick. Problem was नॉर्मल. एक एडजस्टमेंट अलग था, वो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर का. उसका मैं नोट देता हूं. और एक कैलकुलेशंस थे थोड़े बहुत. आधा आधा डेटर गया था. थोड़ा लायबिलिटी टेक ओवर है, थोड़ा एसेट टेक ओवर है. आज ऐसा ही सम होमवर्क में आने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस वाला. बराबर से चेक करना, सॉल्व करना. JLP वाला सम होगा और एक कैलकुलेशन वाला सम होगा. JLP का कंसेप्ट डिटेल में अभी नहीं है तुमको, खाली इतना सा ही पार्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक्स ही एक्सप्लेन किया है. डेथ के टाइम पे मैं वापस थोड़ा रिवीजन के वक्त डिटेल लूंगा. JLP का बेसिक फंडा खाली समझा. यहाँ पे क्या है JLP? सरेंडर वैल्यू क्लेम. इसका मतलब समझ में आया? हेलो. सरेंडर वैल्यू क्या होता है? क्लेम क्या होता है?
What is surrender value? What is claim value? मतलब सर जब आप कोई भी प्रीमियम नहीं भरते हो तो उसका सरेंडर वैल्यू आ जाता है ना बाद में। हाँ, डिसकंटिन्यू कर देते तो you'll get surrender value, या रिटायरमेंट पे you'll get surrender value. रिटायरमेंट में जब भी आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो पॉलिसी, बेच दे रहे हो पॉलिसी को, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन के वक्त, या डिसकंटिन्यूइंग, देन इट विल बी surrender value. But if someone dies, then you will get claim value. Treatment, accounting treatment is just like any other asset. Asset बेच के पैसा आ गया, earn the money by selling the asset. सर आरडीडी और वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का हम लोग मिक्स कर सकते हैं। आरडीडी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का यस क्लब कर सकते हैं, यस। उसको दूसरे लायबिलिटी के साथ भी ले सकते हैं, मैंने अलग से बताया, अलग से दिखाना इज बेटर। इनको सन्ड्री लायबिलिटी के साथ भी मर्ज कर सकते हो आप, कॉमन एंट्री में चलेगा। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं जर्नल के साथ। फर्स्ट एंट्री बताओ मुझे, कौन बताएगा? सुहानी जी बताइए। Realization to machinery, stock, life, Big policy, one. investments and book tax. बराबर है। Realization to machinery to stock to life policy to investments to book debts. Okay, the big journal entry. Realization to machinery to stock to life policy to investments to book debts. Sundry assets realized. Sundry realized. Sundry assets realized. Oh, sorry. Sundry assets transferred to realization. Sundry assets transferred to realization. Sundry assets transferred to realization. Narration. Sundry assets transferred to realization. Second entry, ये वाला RDD joint life policy fund to realization. RDD joint life policy fund to realization. slow down now. RDD joint life policy fund to realization. RDD joint life policy fund to realization. Same narration, RDD and joint life policy fund transferred to realization. RDD and joint life policy fund transferred to realization. RDD and joint life policy fund transferred to realization. What will be the third entry, Ayush? Joint life policy fund to realization. अरे वो हो गया, RDD joint life policy fund to realization. अरे ये भाई, creditors Sheetal's loan to realization. Sheetal's loan to realization. Creditors Sheetal's loan to realization. Creditors Sheetal's loan to realization. Sundry liabilities transferred to realization. Creditor Sheetal's loan to realization. Being sundry liabilities transferred to realization. Sundry liabilities transferred to realization. Just Doshi, can you tell me the next entry? Bank to realization. Bank to realization. Bank to realization 342275. Sundry assets realized. Bank to realization 342275. Sundry assets realized. Bank to realization 342275. Sundry assets realized. Sundry assets realized. ठीक है? Hena Satra, can you tell me the next entry? बैंक टू रियलाइजेशन हो गया. अच्छा तो शेफाली कैप टू रियलाइजेशन. Shefali cap to realization, you can also club these two, okay? Shefali cap, Sadhana cap to realization, okay? तो Shefali cap to realization इधर मैं इंडिविजुअली दे रहा हूँ, क्लब भी कर सकते हो आप. एक सम में हमने क्लब भी करके किया हुआ है. Shefali cap to realization 61,250. Investments taken over by Shefali. Investments taken over by Shefali.
investments taken over by Shefali. Then Sadhana cap to realization, Sadhana cap to realization, stock and debtors taken over by Sadhana, stock and debtors taken over by Sadhana, and debtors taken over by Sadhana. Khahish, can you tell me the next entry? Which one? 7th. 7th. Realization to bank. Realization to bank, very good. 56,350, sundry liabilities paid off. Realization to bank, 56,350, sundry liabilities paid off. Realization to bank, 56,350, sundry liabilities paid off. Yash Desai, 8th entry. Yash Desai, what is the 8th entry? Realization to Shefali cap. Realization to Shefali cap. Shefali's loan, Sheetal's loan taken over by Shefali. Sheetal's loan taken over by Shefali. Sheetal's loan taken over by Shefali. Ishita, 9th entry. प्रॉफिट वाला शेफाली साधना सोनाली रियलाइजेशन टू शेफाली कहते हैं रियलाइजेशन टू शेफाली टू साधना टू सोनाली प्रॉफिट है ना रियलाइजेशन टू कैपिटल लॉस है तो उल्टा कैपिटल टू रियलाइजेशन ओके रियलाइजेशन टू शेफाली कैप टू साधना कैप टू सोनाली कैप realization to Shefali cap to Sadhana cap to Sonali cap, profit on realization transferred, profit on realization transferred, profit on realization transferred. Miloni, 10th entry. Shefali cap, Sadhana cap to bank. Very good. Shefali Sadhana to bank. Surplus paid off on final settlement. Surplus paid off on final settlement. Surplus in partners capital paid off on final settlement. Mrinmayi, last entry. Bank to Sonali cap 271. Bank to Sonali cap 271. Being deficit in partner capital received on final settlement. Deficit in partners capital received on final settlement. Deficit in partners cap received on final settlement. एक नोट लिखना है सबको इसके बाद. अच्छा, कैन समवन टेल मी अपना ये सम हुआ है क्या 7th सम? सम नंबर 7. यस सर हो गया. सम नंबर 7 पक्का? हाँ पक्का. 8 हाँ हो गया. 9 10 9th बाकी है. नहीं 9th भी हो गया, 10th भी हो गया. 9 तो कल किया था. हाँ लास्ट लेक्चर. 10th हो गया. 11th बाकी है. 12 13 से सब हो गया ना. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 से लेके 8 में कुछ बाकी है. 1 से 8 में नहीं कोई बाकी नहीं है ना. ठीक है, चलो लिख दो. नोट लिखो सब लोग. राइट डाउन अ नोट. Unrecorded investments of rupees 10,500. Unrecorded investments of rupees 10,500 were directly given to creditors in settlement of claims. Unrecorded investments of 10,500 were directly given to creditors in settlement of their claims. Hence,
will not have any entry, hence will not have any entry, hence will not have any entry, hence will not have any entry. Okay, that's it. अच्छा, next week I'm not keeping any test. Okay, पर्यूषण है तो उसका next week आपका टेस्ट रहेगा. अभी सीधा 5 chapters combined टेस्ट होगा. Start preparing. Bills of exchange, final accounts, admission, retirement and death. Okay, with objectives होने वाला है. तो we are going to start with the objectives. आज थोड़ा शुभारंभ करते हैं. Take out standard textbook. सर पर बीओई तो निकल गया ना, आपने बोला. ऑप्शन में है ना बाबा, सिलेबस में. सर वो क्या है, unrecorded investments of 10,500 were directly given to creditors in settlement of their claims, hence will not have any entry. In सर छोड़ settlement दो of ना their अभी. सर claims, अभी आज hence will आने not दो have ना. any entry. हाँ 5 एक मिनट दिन की बात है. सर. फटाफट ले लो. पूरा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो 3-4 सर लेक्चर. बीओई का ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है एग्जाम में. सर बीओई एडमिशन वो सब तो हो गया है, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, आज जाने दो ना. ऑब्जेक्टिव्स कैन कम इन एग्जाम, सब चैप्टर्स में से. ऑब्जेक्टिव्स सर का तो कोई मतलब ओमिशन नहीं है. ओमिट किया ही नहीं है ना, सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए दे दी है. ओमिट एज इन है ना, अगर आप अच्छे से देखो. अभी जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी ऑप्शन. दे विल प्रिपेयर फॉर एडमिशन, दे विल प्रिपेयर फॉर डिसोल्यूशन. तो यही चैप्टर वो लोग प्रिपेयर करेगा. शेयर्स ऐसा अपन तो सब लोग अपन तो ऑल द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डू, बट अदरवाइज वन चैप्टर करके यू कैन अटेम्प्ट द पेपर ना. दैट वे इट इज ओमिट. समझा सर तो ऑब्जेक्टिव्स थोड़ी आएगा एग्जाम में उसका. ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा. सेल्फ स्टडी दिया है ना, और ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ बोला नहीं है काट-कूट. ऑब्जेक्टिव्स तो पूरा आ सकता है. टेक आउट फाइनल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव्स. बीओई का तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड राइट ऑब्जेक्टिव्स. हाँ सर हो गया वो. फाइनल अकाउंट्स का बाकी था अपना. फाइनल अकाउंट्स 2 मिनट रुको सर, बुक लेके आता हूँ. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो गया सर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो गया. फाइनल अकाउंट्स का ले लो. सर पेज नंबर बता रहा हूँ, ये रहा. पेज नंबर है 50. 50. पेज नंबर 50. सर पर्यूषण में लेक्चर्स होगा कि वो भी नहीं यस, होगा? लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स होंगे. चलो, फर्स्ट वन, फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस. Select the most appropriate option. When there is no partnership agreement between the partners, the division of profit take place in equal ratio. All of you clear? Nothing is given, then division of profit takes place in equal ratio. To find out the net profit on net business, dash account is prepared. P&L. A dash is an intangible asset. Goodwill. In the absence of an agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of 6%. ये दो ही चीज एक्ट में दिया हुआ है, याद है आपको? 6% इंटरेस्ट पे लोन और इक्वल पार्टनरशिप रेशियो, बाकी कुछ नहीं दिया. लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड. अनलिमिटेड. ओके, अनलिमिटेड. अनलिमिटेड का मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस 1932.
1932. 1881 में क्या आया था? बीओई का। हाँ, बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. हाँ वही ना बीओई। 1956 में क्या आया था? पार्टनरशिप। कंपनीज एक्ट. हाँ इंडियन वही। कंपनीज एक्ट. पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप और सर 1932. 1984 में क्या आया था? 1984 में कुछ नहीं था. 1984 में बॉम्बे ट्रस्ट भी नहीं था. नहीं, कुछ नहीं था. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर dash according to the Companies Act 2000. 50. 50. Write one word or term or phrase for the following. Persons who form the partnership firm. Partners. Partners. Persons who form the partnership firm are called partners. Amount of cash or goods withdrawn by the partner from the business from time to time. Drawings. Drawings. An association of two or more persons according to Indian Partnership Act 1932. Firm. Partnership. Partnership firm. Partnership. Khali partnership. Association of two or more persons according to Indian Partnership Act 1932. That's partnership. Act under which partnership firms are regulated. Indian Partnership. Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. Process of entering the name of the partnership firm in the register of registrar. बताया था मालूम? रजिस्टर में एंटर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडमिशन. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. रजिस्ट्रार के पास थप्पा वप्पा लगवा के आपका डीड को रजिस्टर करवाते हो. इट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म. Partnership deed. पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ याद है? बताया था. इंडिया में कंपलसरी है, ऑप्शनल है? कहाँ महाराष्ट्र में कंपलसरी है. महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी सब जगह ऑप्शनल है. हाँ, ये आई थिंक 1984 से कंपलसरी हुआ था. यस, दिस डीड वाज मेड कंपलसरी फ्रॉम 1984. रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र. एंड और क्या पूछना था? हाँ, बाकी सब जगह वर्बल एग्रीमेंट भी चलता है. तो रिटर्न बेटर है ऑलवेज. आप कोर्ट केस में वगैरह फाइल करके दिखा सकते हो. Under this method, capital balances of partners remain constant. Proportionate capital. Fixed capital. Under this method, capital balance of partners remains constant. Fixed capital. Capital ना. Fixed capital method. तो वही तो बोला सर. Proportionate बोल रहा है कोई तो. Fixed capital method. Proportion in which partners share profit. PSR. PSR मत लिखना उधर. Profit sharing ratio. Such capital method in which only capital account is maintained for each partner. Fluctuating capital. Fluctuating capital. Very good. Fluctuating capital method में हम लोग खाली capital रखते हैं ना. Fixed capital method में क्या maintain करते हैं? Capital as well as current. The account to which all adjustments are made when capital is fixed. Current. A partner's current account या current account. Expenses which are paid before they are due. Prepaid. Prepaid expenses. Accounts that are prepared at the end of each accounting year. Final account. An asset which can be converted into cash easily. Liquid asset. Shabash. Liquid asset. Okay. Liquid assets मतलब easily convertible into cash. Like cash तो cash ही होता है. Bank, debtors, bills receivable, ये सब liquid asset होता है. Stock, prepaid expenses को illiquid बोलता है. इससे फटाफट पैसा आ नहीं सकता है. बाकी सब liquid होता है. Order in which fixed assets are recorded first in the balance sheet. Order in which fixed assets are recorded first in the balance sheet. Marshalling बोल सकते हो या order of liquidity भी बोल सकते हो. इसमें ये लोग ने क्या दिया है, you'll have to check. किसी के पास solution पीछे. Marshalling and order of liquidity दोनों आता है इसका. Order of liquidation. क्या दिया है पीछे? Order of liquidation दिया है.
हाँ हाँ ओके, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन लिख दो। मार्शलिंग एक्चुअली ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन पे ही रहता है, बट अभी ये लोग कुछ और आंसर देगा, फिर लफड़ा हो जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम होता है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन एंड मार्शलिंग, बट इधर जो क्वेश्चन में दिया वो मेंशन करना। इधर ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन है। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ लिक्विडेशन दिया है। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन लिखो भाई। Marshalling and order of liquidation is one and the same. Okay, the order of liquidation is the order of liquidation. The account in which selling expenses of business are recorded. Profit and loss. Profit and loss account. Profit and loss account. Debit balance of trading account. Gross loss. Gross loss. Shabash, gross loss. Credit balance होता तो it would have been gross प्रॉफिट। देखो डेबिट बैलेंस, एक स्टूडेंट को बहुत भयंकर कंफ्यूजन रहता है, एकदम क्लियर रहना इसके साथ। डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट का मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो बाय आता है बाय, तो वो ग्रॉस लॉस होता है। वैसे मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट? नेट लॉस। नेट लॉस। वैसे ही यहाँ पे दिया है 17(1), व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट? Net profit. Net profit. What is Sure. एक मिनट, what is debit balance of realization account? Loss on realization. What is credit balance of realization account? Profit on realization. Is that clear? Yes. What was the doubt? सर डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पीछे तो एसेट साइड लिखा है, मतलब नहीं रॉन्ग है वो। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, पीछे चेंज कर दो, मिस्टेक है। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मींस ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग मींस ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग मतलब ग्रॉस लॉस। गॉट इट? डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मतलब नेट लॉस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मतलब नेट प्रॉफिट। कीप दैट इन माइंड। पीछे अगर कुछ एसेट कुछ दे दिया तो कट करके ये लिख दो, रॉन्ग है वो। ठीक है, तो वी स्टॉप ओवर हियर। आगे और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स होमवर्क आपको मिल जाएगा, कल शाम तक सबमिट करना है। कुछ डाउट्स है तो यू वेट।